Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So welcome to JIB सेवी प्रेप. आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे. So guys, आज की सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं capital structure and cost of capital, which is your unit number 24 from module C. Okay. So I hope कि आप लोग पिछले सेशन को देख रहे होंगे, ठीक है. So जैसे जिस स्पीड से मैं आपको लेके चल रहा हूँ अराउंड उसके आसपास होंगे, ठीक है. So from soon we are going to start our IN IFS classes also. Okay, so look, I have already started the recording and all. Okay, so same pattern we will do there also. Unit wise MCQs and case studies. तो बिल्कुल आपका रेडी रहना है, ठीक है. एंड वी आर हैविंग अ टारगेट कि बाय द एंड ऑफ मार्च वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल दी like AFM as well as your आपका IN IFS. Then we will add some subject regarding try कि RBWM को भी खत्म कर लेंगे पहले. Then PPB आपका इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसमें लेके चलेंगे, ठीक है. So module C, which is all about the financial management. So we already done with financial management overview, ratio analysis, interest and annuities, YTM, Forex, arithmetic. Okay, now today we are going to talk around the capital structure and cost of capital. These back-to-back 2 or 3 sessions are very important. Reason being, they'll help you out in your CAIB, ABFM paper also, right? So guys, let's have a quick look around the course content, topic and subtopics. So I'll let you know the important areas also. So factor influencing decision of capital structure. At least one question for half marks. Downside expected based on this particular one. Every time they generally ask that question. Theories and approaches on capital structuring. So as per your course curriculum, we have 3 theories. So net income theory, operating income, and traditional theory. So वहाँ से most of the time they generally ask net income theory because that is led by the your weighted average cost of capital or trading on equity and all the financial leverages. Taxation and capital structure, this is also linked with your net income theory. Concept of cost of capital, cost of debt, cost of preference capital, cost of equity. Okay? Then we have weighted average cost of capital, the another very important unit. Okay? So these 3 units as of now, subtopic, sorry. Okay? Factor affecting weighted average cost of capital, again important. Weighted marginal cost, determining optimal capital budget, floating cost and cost of capital. Then misconception about the cost of capital in this. Okay? So these are the subtopics which are generally part of this one. Okay? And we are going to cover each and every subtopic of this particular unit. And बिफोर दैट आई होप कि आप सबने जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं इसकी वो देख ली होंगी, ठीक है. वी हैव स्पेंड अ गुड टाइम विद दिस पर्टिकुलर यूनिट और इवन द कमिंग वन ऑल्सो, ठीक है. तो जहाँ पे लाइक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द दो ऑल दीज 3 थ्योरीज, ठीक है, वो जो तीनों थ्योरीज हैं आपके, उनको हमने काफ़ी डिटेल में मतलब जो देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके लिए किए हैं दैट इज अराउंड 12 बार, ठीक है. वो एक ऐसा उसका डिजाइन करने का मोटिव है कि आपके पास टाइम का प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, यू डू नॉट स्किप दोज पर्टिकुलर, ठीक है. तो आप अपना वहां पे कटिंग मत लगाइएगा, ठीक है. तो वो आपका दैट इज मस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द questions, and with the help of questions we will practice areas as well, ठीक है, और we will revise the concept with these particular questions. The very first question is linked with the capital structure. Basically what is capital structure, ठीक है. So what does capital structure represent, ठीक है. So what is capital structure? So like this is something, let's say there is a XYZ company, ठीक है. Let's say they are planning to expansion, ठीक है. So they are planning for expansion, they want to enhance their business, and their capital budget is supposed that 1000 crores, okay? So they need 1000 crore rupees to expand their business throughout the country or outside India also, okay? So now the arrangement of this particular fund is or budget by the company, they can arrange this particular money. देखो 1000 crore है, it is not that small amount, ठीक है. तो यहाँ पे what companies usually do, they raise this particular funds through they can raise this particular fund through 2 sources. One is equity, another one is debt, ठीक है. So this is आपका how that company arrange that particular firm
or in what proportion they are generally arranging that particular firm, that is generally known as capital structure. Let's say the companies they have arranged this into a 30 into 70 ratio. Okay? That means their equity portion is 30 and their debt portion is 70. That means 700 crore rupees they are raising through debt. Debt क्या होता है आपका, जिससे they can issue bond, debentures, bank loan. So these all include the debt side. ठीक है? Equity आपका, it can be common equity, it can be preferred equity and all. ठीक है? So ये आपका जो यहाँ पे रहेगा. ठीक है? So now this combination आपका is generally known as आपका capital structure. ठीक है? You'll always see, जैसे मैंने ये रेशियो आपका मेंशन किया कि equity is always lesser than debt. Reason being, or we can say debt portion will always higher than the equity. Even the same things is generally we are going to understand it net income theory. The reason, with debt we have financial leverages. Okay, equity may we do not have to pay any return to the customers because they become owner of the company. But in case of debt you have to pay them आपका interest and all, but you will maintain your degree of control. ठीक है? तो यहाँ पे ownership चली जाएगी, यहाँ पे ownership बनी रहेगी. तो without selling your company share you are increasing your market value. ठीक है? जैसे आपने 700 करोड़ रुपीस का डेट लिया, you will invest that particular one, so in same proportion you will increase the company's overall market value and all. ठीक है? So that is also known as trading on equity. What is trading on equity? Let's say we borrowed 700 crore rupees at the rate, on an average borrowing was supposed at 9%. Now we will invest this particular one. ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, आपका इन्वेस्ट करेंगे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल्स आपके एक्सपेंडिचर्स के अंदर. ठीक है? और इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल, and the ROI, return on investment, should be higher than your आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. ठीक है? सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस ROI. सो लेट्स से योर ROI इज 14%. सो आपने क्या किया, यू बोरोड मनी फ्रॉम द पब्लिक at 9% and you invested it and you increase your company net worth by, the gap is 5%. This is your profit in this case. ठीक है? This thing is normally known as financial leverage through debt, or it is also known as trading on equity. Now we'll come to the question. So what will be your answer? The total asset of company, the combination of short term and long term investment, no. The mix of debt and equity used to finance a company, that means option C will be right answer for this one. ठीक है? तो capital structure क्या होता है? It is a combination of debt and equity. How that company is financing their assets and all. ठीक है? और how the company is managing or arranging the fund. So that generally comes under this one. ठीक है? So capital structure, specific mix of debt and equity. Now there is a question कि what can be the optimum debt to equity ratio. ठीक है? ऐसा हमने ये पढ़ा भी था. ठीक है? So it is a combination of equity and debt. अब ये रेशियो कितना होगा? Let's say I gave you an example of 30:70. ठीक है? अब ये आपका हो सकता है, इट कैन बी 50:50 ऑल्सो. ठीक है? और इट कैन बी 70:30 ऑल्सो. ये भी आपका यहाँ पे जो देखने के लिए आपको मिल सकता है. इट टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और द इंडस्ट्री एज वेल. ठीक है? तो ये मतलब यू कैन नॉट फिक्स इट फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनीज इन दी वर्ल्ड. ठीक है? डिपेंड ऑन कंपनी और द बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है? तो अगला, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. तो हम ये क्यों कर रहे होते हैं? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द स्टेक होल्डर्स. ठीक है? उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, या ओवरऑल जो कंपनी की वेल्थ है उसको आपका बढ़ाने के लिए, और टू ग्रो. हम कहीं ना कहीं वी अरेंज दैट 1000 crore रुपीज. ठीक है? किसके लिए? आपका कंपनी को और ज्यादा आपका ग्रोथ देने के लिए. ठीक है? दिस वाज द ओनली मोटिव. ठीक है? सो इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क नहीं, to maximize the company's value while the minimizing the cost of capital. This is one area. To increase company's debt level, to rely solely on equity. No. ठीक है? तो अब ये क्या है? Why option 2 is correct here. To maximize the company value as we discussed in this thing, while minimizing the cost of capital. अब ये जो second point है ना, that is something linked with your आपका cost of debt, or we can say कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है? सो हमेशा आप देखेंगे द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन
योर कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, जो डेट की कॉस्ट होगी इवेंचुअली वो आपका कम होगी, और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो क्या होगा, आपका हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज आपका यहाँ पे वो फाइनेंशियल लिवरेजेस और कहीं ना कहीं जो आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल इन अदर्स उनका लॉस हो रहा है, ठीक है, भले ही आपको इस पे रिटर्न नहीं देना है, बट यहाँ पे डेट हम लोग रेज कर रहे हैं, वी आर विद सेम अमाउंट वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी। दूसरी तरफ आपका, ठीक है, कि जो हमने डेट के थ्रू आपका रेज किया है, ठीक है, वी हैव टू like while we go for the capital investment decision, so we will apply the different theories कि अगर हम आपका 7% पे ले रहे हैं, so we will make it sure कि आपका जो रिटर्न होगा, ROI होगा, that will be greater than that, ठीक है, तो इवेंचुअली यू आर लाइक आप जैसे 7% पे कर रहे हो, आप 15% पा रहे हो, ठीक है, सो दैट डिफरेंस इज योर प्रॉफिट, ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं एक तो आपने उतने अमाउंट से अपनी वैल्यू बढ़ा ली, दूसरे से जो रिटर्न था वो रिटर्न में से एक पोर्शन आपका जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ शेयर कर दिया, ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, सो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, अ बैलेंस डेट एंड इक्विटी financing to minimize weighted average cost of capital and maximize shareholders value, ठीक है, now this term weighted average cost of capital, basically how we calculate this particular one, ठीक है, it is आपका portion of equity, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पोर्शन ऑफ इक्विटी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है इसके ऊपर, ठीक है, इनटू आपका कॉस्ट ऑफ डेट, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पोर्शन ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस आपका पोर्शन ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जल्दी से जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ कंपनी, ठीक है, एक आपका XYZ कंपनी, दे हैव जैसे अभी हमने एक केस आपका लिया XYZ, इनका जो ओवरऑल आपका कैपिटल है दैट इज 1000 करोड़, ठीक है, आउट ऑफ दिस 1000 करोड़ दे आर यूजिंग दैट इक्विटी इज टू डेट का रेशियो 30:70, ठीक है, ये आपका सेम है। अब यहाँ पे लेट्स से द डेट पोर्शन, इक्विटी पोर्शन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज सपोज दैट 12% एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज सपोज दैट आपका 8%, ठीक है, सपोज दैट इट इज 8%, ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब अगर आप इससे निकालोगे तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है, सो पोर्शन ऑफ इक्विटी इज हाउ मच, आपका 0.30, ठीक है, इनटू आपका कितना परसेंट, इट इज 12%, ठीक है, आपका इनटू दिस, ठीक है, दूसरे का आपका डेट इज 0.70 इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज हाउ मच 8, तो इनका जो आउटकम होगा दैट विल बी योर इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, सो कितना आएगा आपका 0.3 इंटू 1 2, सो इट इज 3.6, ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाउ मच 3.6 and cost of debt 0.7 into 8, so it is 5.6, ठीक है, so 5.6 सॉरी 8 आपका जीरो, सॉरी, ठीक है, सो 0.7 इंटू पॉइंट कितना है आपका 8, सो 0.8 आपका हो जाएगा, ठीक है, 0.8 आपका, सॉरी कितना है 0.7 इंटू 0.8, सो इट इज कुछ तो गड़बड़ है, 0.7 इंटू 5.6 समथिंग इज रॉन्ग, हाँ ओके, हाँ 5.6 आपका रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ डेट, सो हाँ 5.6 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है तो नाउ अब ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, सो अब जैसे अगर हमें और ज्यादा इसमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, अगर हमें आपका कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा सॉलिड बनाना है, ठीक है, सो फॉर दैट से देयर इज सम मिस्टेक इन 0.08 होना चाहिए था, ठीक है, सो 0.7 इंटू 0.08, 8% है ना, सो 0.056 होगा आपका, ठीक है, नॉट दिस 0.56, ठीक है, कैलकुलेशन पे हम लोग आएंगे, तो ये आपका जहां पे कहीं ना कहीं वी कैन सॉर्ट इट आउट, ठीक है, तो बेसिकली आपका दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो आपका इक्विटी का कितना पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, और ऑप्टिमल क्या होगा उस कंपनी के लिए उसके हिसाब से, ठीक है, आई ये जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन है, so we will discuss with the real questions, ठीक है, I think some data is missing from that particular question whatever I have given to you, ठीक है,
a company which a company with a high proportion of debt in its capital structure referred to as, तो अगर किसी कंपनी के अंदर आपका डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, जैसे हमारी कंपनी के अंदर था, ठीक है, सो XYZ लिमिटेड आपका 1000 करोड़ रुपीस, कैपिटल इज 1000 करोड़ एंड इट वाज डिवाइडेड बिटवीन 300 एंड 700, ठीक है, सो डेट पोर्शन वाज हायर देन द इक्विटी पोर्शन, ठीक है, ये इसका जो आपका जो रेशियो था दैट वाज समथिंग लाइक दिस। अब इसको ज्यादा रखने के पीछे रीजन क्या होता है? बिकॉज विद डेट वी जनरली गॉट दी हाई लिवरेज, ठीक है, डेट इज अ लिवरेज फंड, ठीक है, बेसिकली ये आपका दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज दी ओवरऑल लाइक मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एज पर दी नेट इनकम थ्योरी। कैसे? ये हमने अभी डिस्कस किया था, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, हमने आपका डेट लिया, ठीक है, कितने का? 700 करोड़ रुपीस का एट द रेट ऑफ लेट्स से 7% पर एनम, ठीक है, जहां पे हम लोग जैसे बॉन्ड्स के थ्रू हमने ये पैसा रेज किया, ठीक है, सो वेयर वी आर मेकिंग कमिटमेंट कि वी विल पे यू 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, देन वी इन्वेस्टेड दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, हमने इसको आपका इन्वेस्ट किया। व्हाइल वी इन्वेस्ट, वी विल इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट जहां पे आपका जो आपका ROI होगा, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, दैट विल बी मोर देन 7%। सपोज दैट द रिटर्न इज, आपका जो रिटर्न है इसके ऊपर आपका एक्चुअल दैट इज लेट्स से 10%, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम दूसरों का पैसा ले रहे हैं, उसको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 700 करोड़ एंड वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसमें से आप एक तो हमारे पास 700 करोड़ रुपीस है जिससे हमने अपनी कंपनी के अंदर एक नया ब्रांच और उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ाया, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो दूसरे का पैसा है उसको हम वापस कैसे कर रहे हैं? इसके थ्रू आपका, ठीक है, 10 में से 7% हमने दे दिया और 3%, सो दैट हेल्प अस टू इंक्रीज दी लिवरेज फंड। इसीलिए डेट का पोर्शन हमेशा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू योर इक्विटी, ठीक है। इक्विटी के साथ क्या होता है? यू डू नॉट हैव टू पे रिटर्न बट यू लूज द डिग्री ऑफ कंट्रोल इवन इन टैक्सेशन ऑल्सो। यहां पे आपका टैक्सेशन में, ठीक है, तो जब आप इसका फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ठीक है, सो वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग, ठीक है, जो ये इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ठीक है, इसको आप डिडक्ट करोगे बिफोर टैक्सेस, ठीक है, इबिट के बाद आपका यू हैव टू माइनस दिस पर्टिकुलर वन, जो टैक्स आपने पे किया है उसको आप एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट दिखाओगे, ठीक है, इसको माइनस करोगे। लेट्स से दिस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 करोड़, तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से 10 करोड़ माइनस करोगे, जो उसके बाद अमाउंट लेट्स से योर आपका एबिट वाज 50 करोड़, सो 50 करोड़ माइनस 10 करोड़, तो योर टैक्स लाइबिलिटी विल बी अकाउंटेड ऑन 40 करोड़। बट इन केस ऑफ इक्विटी, इक्विटी में क्या होगा? आपका आप कोई ऐसा इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे हो, तो 50 करोड़ प्रॉफिट है तो 50 करोड़ पे एट द रेट ऑफ 25% आपको क्या पे करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट टैक्स आपका पे करना पड़ेगा। दैट इज द अनदर बेनिफिट, ठीक है। तो इसलिए हमें ओवरऑल आपका जो डेट फाइनेंसिंग है वो सस्ती पड़ती है कंपेयर टू इक्विटी आपका, ठीक है। अ फर्म कंसिडर्ड हाईली लिवरेज व्हेन it is a significant proportion of debt in its capital structure. High leverage increase both financial risk and return potential. This is the risk associated with this team. Which factor does not affect the capital structure decision? So इनमें से कौन सी जो capital structure मतलब equity और debt के पोर्शन पे आपका इंपैक्ट नहीं डालते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आपका इफेक्ट डालता है, इट डज। डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका जैसे वाई वी केप्ट लो पोर्शन ऑफ इक्विटी बिकॉज इक्विटी हैज हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, सो इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हायर देन योर डेट, इसलिए डिग्री ऑफ कंट्रोल अगेन लिंक विद योर इक्विटी, ठीक है, वाई वी केप्ट इक्विटी पोर्शन लोअर साइड बिकॉज विल लूज इक्विटी, ठीक है। अगर हम डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है, अगर हम जैसे हमारी कंपनी के अंदर जो शेयर्स हो खूब सारे शेयर कर देंगे, आपको सेल आउट कर देंगे, तो नाउ पब्लिक विल ओन दैट मैक्सिमम ओनरशिप, ठीक है, दे विल इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑब्वियसली दे विल डू, ठीक है। Depreciation rate is, they do not have a direct impact on the capital structure, they'll affect your profit and loss account, ठीक है। So it is an operating expense which we generally treat with the profit and loss account, तो ये आपका D will be right answer, ठीक है। So factor influencing capital structure include cost of capital, degree of control, government regulation and trading on equity. Trading on equity means financial leverages. Depreciation rate affect financial statement but does not directly influence the capital decision. Next one guys, according to net income theory of David Duren, so David Duren was the person who gave this net income theory, ठीक है। तो तीन थ्योरीज हमारे पास है, नेट इनकम थ्योरी, देन वी हैव ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी एंड थर्ड वन इज ट्रेडिशनल थ्योरी। जो नेट इनकम थ्योरी एंड ट्रेडिशनल इनकम थ्योरी है ये दोनों सेम है। क्या था इन थ्योरीज के अंदर आपका?
सो नेट इनकम आपका थ्योरी दैट इज दिस कि आपका जो इक्विटी मतलब डेट का पोर्शन होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, कंपेयर टू योर इक्विटी। ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी क्या बोलती है, आपका ये जो डेट एंड इक्विटी का जो रिलेशनशिप है दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका कंपनी के मार्केट वैल्यू के ऊपर। ट्रेडिशनल थ्योरी इज आपका इट इज सिमिलर टू योर नेट इनकम थ्योरी, ये बोलता है कि डेट का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए बट टिल सम एक्सटेंट, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डेट ले लो तो वो उसका फिर नेगेटिव इंपैक्ट होना शुरू हो जाए, तो दैट इज द वन, ठीक है। ये हमने काफी डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। So please do watch those particular concept videos. They'll help you out to understand these all the three theories. And only three theories are part of your course curriculum. ठीक है? So according to net income theory, increasing the proportion of debt क्या होगा आपका? It will help company to increase their market value or company will have financial leverages. ठीक है? So and अगर हम लोग weighted average cost of capital के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? So जैसे हमारा क्या है? Let's say cost of debt is 7% and cost of equity is let's say 12%, ठीक है। अब देखो क्या होगा, डेविड डोरेन ने क्या बोला, नेट इनकम थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, दे जनरली सेड कि वी शुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ, अब जैसे अभी इनका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज आपका 7 और 12 कितना होता है 19 डिवाइड बाय 2 अगर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सो वेटेड एवरेज cost of cap, let's say if debt ratio is suppose that 50-50, ठीक है, 50-50 है, तो इनका आपका क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी आपका 19 डिवाइड बाई 2, ठीक है, सो विच इज आपका 9.5, ठीक है, सो 9.5%। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द डेट पोर्शन, लेट्स से नाउ वी चेंज दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हमारा जो नया इक्वेशन है दैट इज सपोज दैट जो आपका इक्विटी एट डेट का पोर्शन है, वी इंक्रीज डेट पोर्शन टू 70% एंड इक्विटी टू 30%, ठीक है। तो अब ये क्या होगा आपका, हाउ विल कैलकुलेट 0.7 इंटू कितना, आपका कॉस्ट ऑफ डेट इज 7, ठीक है, प्लस आपका जो डेट का पोर्शन 0.30 इंटू आपका सॉरी 12 आपका 12, ठीक है, सो 12% आपका, सो दैट योर आउटकम, अब देखो इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, योर मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल कम डाउन, इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा 9.50% से नीचे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विटी का फाइनेंसिंग था 12%, 12% के हिसाब से हमने 300 करोड़ रुपए का लोन आप मतलब बेसिकली इक्विटी रेज किया था, या 500 करोड़ का हमने, जैसे 1000 करोड़ है तो उसमें से आपका 12% के हिसाब से आपका इक्विटी था और आपका 7% के हिसाब से 500 करोड़ हमारा क्या था, डेट था, ठीक है। नाउ इफ वी चेंज दिस स्ट्रक्चर, अगर हम इस स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, if we reduce the portion of debt, ठीक है, there was one direct question based on this concept in your recent examination, ठीक है, तो अगर हम डेट के पोर्शन को कम कर सॉरी इक्विटी के पोर्शन को कम कर देते, 1000 में से आपका 300 करोड़ ही डेट रखते हैं, तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट विल कम डाउन, विच इज जनरली नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो डिक्रीज इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी राइट आंसर, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, वी विल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है, इसी सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन आपका, जैसे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था इन योर एग्जामिनेशन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट वाज टू दिस थियोरेटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल में भी हो सकता है, उस पर भी हम लोग आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू डेविड डोरेन नेट इनकम थ्योरी, इंक्रीजिंग डेट फाइनेंसिंग रिड्यूस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंस डेट हैज a lower cost than equity, ठीक है, जैसा हमारे केस में भी हमने समझा था। Which theory of capital structure suggests that the value of firm independent of its debt equity mix means that is also known as irrelevant theory, जिसका ये कहने का मतलब है कि जो आपका डेट एंड इक्विटी का थ्योरी है, जो ये जो डेट एंड इक्विटी का पोर्शन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज जनरली नोन एज नेट ऑपरेटिंग थ्योरी, ठीक है। तो तीनों थ्योरीज मैंने, अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिस थ्योरी इज आल्सो गिवन बाय डेविड डोरेन इटसेल्फ, ठीक है। ये आपका नेट इनकम थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि जो डेट का पोर्शन होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी क्या कहती है, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ डेट टू इक्विटी मिक्स, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट, ठीक है।
ट्रेडिशनल थ्योरी आपका विद सपोर्ट टू नेट इनकम थ्योरी, दे आल्सो सेड कि डेट का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए बट टिल सम एक्सटेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब 100% डेट पे ही चलाओ, नो, उन्होंने बोला कि आप इसको ज्यादा रखो बट एक लिमिट तक आपका, ठीक है, बिकॉज आफ्टर बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट इट विल स्टार्ट मेकिंग रिवर्स इंपैक्ट, उसका मतलब आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सो दैट इज द वन। सो दीज आर द थ्री थ्योरीज। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इज नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, सो विल नॉट डिस्कस दिस वन, ठीक है। So net operating income theory, again by Durant, David Durant, state that value of a firm independent of its capital structure because changes in debt level are offset by changes in the required rate of return। तो इन्होंने बोला कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसको irrelevant theory के नाम से भी आपका जानते हैं। नेक्स्ट वन, which cost included while calculating the weighted average cost of capital, ठीक है, तो जब हम लोग आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सा कॉस्ट आपका इंक्लूड होता है, ठीक है, इंक्लूडेड है आपका, ठीक है, तो क्या होता है कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है, जैसे प्रीफरेंस शेयर्स उनका कॉस्ट अलग होगा, आपका जो इक्विटी शेयर्स है उनका कॉस्ट अलग होगा, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है, वी हैव रेज्ड डेट थ्रू मल्टीपल, जैसे हमने 700 करोड़ का आपका डेट लिया था, इसमें से द बाइफरकेशन इज सपोज दैट बैंक लोन आपका 300 करोड़, ठीक है, एट द रेट ऑफ 7%, ठीक है, 9%, चलो ठीक है, आपका इसके अलावा जैसे डिवेंचर आपके हैं, डिवेंचर, ठीक है, एट द आपका डिवेंचर लेट्स से आपका 100 करोड़ एट द रेट ऑफ लेट्स से 8%, ठीक है, वी हैव बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आपका एट द रेट ऑफ सॉरी आपका लेट्स से 4 आपका 300 करोड़ एट द रेट ऑफ कितना, लेट्स से इट इज 9%, ठीक है, तो ये अब ये देखो तीनों का अलग अलग है, ठीक है, तो ये 8% है, 9% है, लेट्स से इट इज 10%, ठीक है, तो अलग अलग आपका, तो इनका वेटेड एवरेज, ठीक है, और सेम आपका इक्विटी में भी प्रिफर्ड इक्विटी का अलग, आपका कॉमन इक्विटी का अलग। सो कॉस्ट ऑफ डेट एंड रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड मार्केटिंग, which cost included while calculating weighted average cost of capital, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ पेटेंट एंड ऑल, ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर, कॉस्ट ऑफ डेट एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, सो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वेटेड एवरेज क्यों हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया, ठीक है। How does the degree of control influence capital structure decision? So degree of control, ठीक है, degree of control we generally lose in case of equity, ठीक है, तो अब इक्विटी, डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है इक्विटी, जैसे अगर आप एक कंपनी चला रहे हो XYZ एंड यू ओन 100% दिस पर्टिकुलर कंपनी, नाउ योर कंपनी नीड 1000 करोड़, ठीक है, आपका 1000 करोड़ रुपीस का रिक्वायरमेंट था, सो व्हाट यू जनरली डिड, आउट ऑफ दिस 100% आपने 20% आपका सेल किया पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है, सो नाउ शेयर मींस पार्ट ऑफ ओनरशिप, so they become owner of your company and now this ownership is divided between 80:20, ठीक है, 80% आपके पास है and 20% degree of control belongs to the general public, so this is the degree of control which we generally lose while company raise debt or this funds through the equity, ठीक है, a company issue more debt retain greater control than when issuing new equity, a company issuing more debt retain greater control than issuing new equity, सही है, issuing equity increase control, no, it decrease control for the existing shareholders as we discussed, company allow preferred debt over equity irrespective of control consideration, no, respective of control consideration, ठीक है, government regulation do not allow firm to issue a expensive debt, no, this is there is no provision, so what will be our correct answer, A will be right answer for this one, understood, समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना, प्लीज डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, और थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है, मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं है इस बार के बजट में भी, और थोड़ा सा लाइक इफ यू वांट टू हेल्प, जैसे हमने ये मुहिम स्टार्ट किया तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है, लाइक आई सॉ समवेयर कि लाइक पीपल आर सेलिंग फॉर 8,000 10,000, दैट इज लाइक नॉट द पॉइंट, वी जस्ट हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगा आई विल मेक श्योर कि मतलब अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लोगे ना, आई कैन गारंटी कि हाँ जो आपके हैं वो आपके आप सिर्फ पास नहीं करोगे, यू विल पास विद वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, 65 आपका डाउन साइड लेके चलो, ठीक है,
और मतलब आई अंडरस्टैंड कि यार लाइक मैं इस एज अ बैंकर काम कर चुका, तो आई हैव दैट थिंग कि आफ्टर 8 hours और 10 hours ना इट इज वेरी हार्ड टू स्टडी लाइक 500 hours और 10 आपका 1000 hours. आई डोंट नो कि व्हाट वाज द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट सेलिंग कोर्सेज कि वी विल प्रोवाइड यू 1000 hours. 1000 hours का कोई यूज नहीं है, CAIB के अंदर रिक्वायर्ड होगा, बट इवन दैट इज ऑल्सो हैव सम पॉइंट. आर पेन पॉइंट इज टाइम. टाइम आप कॉन्सेप्ट के अराउंड यूज करो बढ़िया से, और वो चीज है ना अगर आप काम करेंगे हेल्प करेगा. मैंने खुद जब ये पेपर लिखा, सो आई वो चीज मतलब लाइक आई जस्ट जनरली एंटर्ड इन योर शू कि कैसे आपका चीजें होती है. एंड व्हेन आई क्लियर ना, आई थॉट कि हाँ दिस इज द पॉइंट, दीज आर द एरियाज व्हाट IIBF इज थिंकिंग. हर बार मैं जाता हूँ सेंटर पे, बात करता हूँ लोगों से, तो वो बताते हैं कि हाँ सर दिस टाइम दिस वाज द चेंज इन ऑल थिंग. दैट एक्सपीरियंस, लास्ट 4-5 year एक्सपीरियंस, आई विल प्रोवाइड यू विद दिस. और आप इन पे फोकस करो, आसानी से निकल जाए. बस थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट होता है कि आप टाइमली बेसिस पे मतलब थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करते रहिए. एक साथ आपका फिर आपका वीक में प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, PPB एंड AFM एक साथ होगा मोस्ट ऑफ द ईयर्स, आपका होता है ये चीज. ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 2 पेपर बैक टू बैक होंगे, तो एक पेपर को हम पहले से आपका अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जो हम लोग कर रहे होते हैं. ठीक है. So a company issuing more debt retain greater control than one issuing new equity. ठीक है, तो ये हमने अभी आपका केस के साथ समझा. कॉन्सेप्ट समझ लिया ना गाइस, मतलब आपको फिर कोई भी चैलेंज नहीं आएगा. यही कॉन्सेप्ट आपको CIV में हेल्प करेंगे, जहां पे आपका बेस बना होगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा आपको वो चीजें समझाना. ठीक है. सो फैक्टर अफेक्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक क्वेश्चन हमेशा इससे भी पूछा जाता है हाफ मार्क्स का, विद सेम दीज लाइन, इन्हीं लाइन के साथ आपका. ठीक है. So factor affecting weighted average cost of capital of a firm classified among 2 categories. One is internal factor, external factor. ठीक है, internal factor आपका जो कंपनी से रिलेटेड है, एक्सटर्नल आपका which are beyond the capacity of company. ठीक है, तो आपका जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, इक्विटी इन डेट क्या होना चाहिए. जैसे अगर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे रखना, तो वी विल इंक्रीज द पोर्शन ऑफ डेट. ठीक है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, हाउ वी आर इन्वेस्टिंग, जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा. एंड डिविडेंड पॉलिसी. ठीक है, कब हमें डिविडेंड इशू करना चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे. दीज आर द इंटरनल. एक्सटर्नल आपका इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, रिस्क परसेप्शन इन मार्केट प्रीमियम, एंड रेट ऑफ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस. क्योंकि ये अभी जैसे 25% है, अब अगर वो बजट में उसको 30% या 35% कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका मतलब जो इक्विटी साइड का कॉस्ट है वो तो और ज्यादा आपका इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे. बट हाँ, डेट वाले पोर्शन में वो माइनस होगा एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो कहीं ना कहीं अगर आपने इक्विटी के थ्रू फंड रेज किया है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आने वाले हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. ठीक है, हाउ डू गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट अ फर्म. अब जैसे टैक्सेस की बात है, ठीक है, ड्यूरिंग बजट दे इंक्रीज द आपका जैसे इंक्रीज द टैक्सेस फ्रॉम 25 to 35. अब ये ऑब्वियसली आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, आपके इनकम के ऊपर सीधा सीधा आपका इम्पैक्ट डालने वाला है. दे डिटरमाइन द फर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो. नो, they influence the, this decision is taken by the company management itself. They influence the cost of and availability of debt financing through interest rate regulations. uh, they influence the cost and availability of debt financing through interest rate regulation. Okay, they force companies to maintain an equal proportion. No, they require they require firm to financing capital expenditure only through retain earning. No, ठीक है, तो क्या होगा हमारा सही है जवाब. they influence the cost and availability of debt financing through interest rate regulation. ठीक है, जिससे आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, या अदर्स, इनके थ्रू आपका जो कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर. जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आपका, हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज दी कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है, अगर आपका मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट अगर आपका इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली योर रेट, आपका जो लोन का रेट इंटरेस्ट है, दैट विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है, टैक्स पॉलिसीज आपका जैसे 25 to 35 का हमने लिया. रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस आपका, गवर्नमेंट में सेट लिमिट ऑन डेट फाइनेंसिंग कि आप इतने मतलब एक कंपनी आपका इतने तक ही डेट ले सकती है. गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आ गई, तो यू कैन नॉट ब्रीच दैट पर्टिकुलर वन. सो दीज आर द रीजंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. If a company increase its portion of debt in its capital structure, what happened to weighted average cost of capital?
सो अज्यूमिंग दिस, तो क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज आपका। ये हमने डिस्कस कर लिया बहुत आसानी से। अब आई होप सब लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे इसको, ठीक है। चलो अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। The weighted average cost of capital is calculation of a company average this, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। A company has a cost of equity 12%, cost of debt is 8%, ठीक है। Company debt to equity ratio is 0.50%. So what is company's weighted average cost of capital? बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा सबसे। कैसे? पहले तो आपका इनका डेट टू इक्विटी, अब डेट टू इक्विटी रेशियो आपका दिया है, आपका क्या आपको 0.50, दैट मींस इनका जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है दैट इज 50:50, ठीक है। इनका जो आपका पोर्शन है दैट इज 50:50, 0.5, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो इट इज आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आपका कॉस्ट ऑफ डेट into cost of debt into portion of debt और weighted average cost of debt और weighted average portion of debt, ऐसा भी हो सकता है, प्लस आपका cost of equity इनटू आपका पोर्शन ऑफ इक्विटी, ठीक है, पोर्शन ऑफ इक्विटी। अब ये आपका सामने वो है, ठीक है। तो हमारे केस में आपका पहले अगर हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, सो इक्वल टू पोर्शन ऑफ डेट कितना है 0.5, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज हाउ मच आपका 8%, ठीक है, प्लस पोर्शन ऑफ इक्विटी इज 0.5 इनटू आपका कितना है 12%, तो कितना हो जाएगा, सो इट इज आपका 4, इट इज योर आपका ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इनका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज योर, सॉरी हाँ ये सही करा ना मैं, आपका 10%। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 10%, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपका आंसर दिस। एंड अगर उसने ये क्वेश्चन आपको पूछा फॉर श्योर 2 मार्क्स क्वेश्चन, और 100% आपको मैं आप मेरी बातों को उसमें याद रखोगे एग्जाम्स के दौरान, यू विल सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है इस तरीके से आपका, ठीक है, या वो आपको कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया रीजन, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। अब इसी में ना वो अगर थोड़ा सा अगर आपका पेपर टफर साइड में आ जाता है, जेआईबी का अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर बना दिया, तो वो क्या करेगा, इसके साथ वो आपको सिचुएशन देगा कि नाउ लाइक दिस इज द, उसने क्या दिया क्वेश्चन आपको, दिस इज द करंट सिनेरियो, ठीक है। नाउ कंपनी इज प्लानिंग टू चेंज देयर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो को चेंज कर रही है, एंड द न्यू रेशियो इज सपोज दैट डेट सॉरी suppose that debt to equity is suppose that 70:30, ठीक है। अब ये कंपनी, so how this transaction or what will be the new weighted average cost of capital, a question, how this change will make an impact on weighted average cost of capital। तो अगर ये आपका पहले तो इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, आप ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, दोबारा से। तो हमारा क्या होगा, पोर्शन ऑफ, हम लोग पहले क्या सॉल्व करें, डेट, पोर्शन ऑफ डेट इज नाउ 0.70, ठीक है, इनटू योर कॉस्ट ऑफ डेट वाज हाउ मच 12, आपका कॉस्ट ऑफ डेट वाज 8, प्लस आपका क्या है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी पोर्शन ऑफ इक्विटी इज 0.3 इनटू आपका 12, ठीक है। तो इसका आउटकम कितना होता है, ठीक है, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है, बट आप लोग ये कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज 5.6, ठीक है, 5.6 प्लस आपका 0.3 इंटू 12, so 3.6, so it is equal to 9.2, so 9.2, so see अब देखो क्या हुआ है, तो उसने आपको क्या पूछा, व्हाट विल बी द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका आंसर होगा 9.2। और अगर या तो फिर वो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर दिस न्यू चेंज, सो योर आंसर विल बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज। अंडरस्टूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसको ध्यान रखिए। अगले एग्जाम में आपका डाउन साइड 1 मार्क्स, ठीक है, ये रिटर्न में ले लीजिए, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, इस तरीके से आपका जो बनेगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, प्लीज गिव योर कंफर्मेशन हाँ या ना,
कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछिएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, अ फर्म स्टार्ट बिजनेस रेजिंग 2 करोड़, ठीक है। कैपिटल कितना है, 2 करोड़ का। आपका डेट टू इक्विटी आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जिस 2 करोड़ में से आपका 1 लाख, सॉरी 1.20 करोड़ इक्विटी और आपका 80 लाख आपका डेट है, ठीक है। सो कैपिटल, ये तो आसान क्वेश्चन है ना। तो 2 करोड़ का 1.2 लाख इज हाउ मच, 60%। सो 60 आपका 60:40 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वन एक्चुअली, सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो 60:40 आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन, चलो अब एक बार इसको जल्दी से रीड आउट करो, क्विकली रीड आउट दिस। डन। तो नेट इनकम थ्योरी मैंने आपको बताया था, व्हाट नेट इनकम थ्योरी आपको क्या कहती है कि मतलब डेविड डोरेन ने क्या बोला कि अगर ये जो हमारा आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो डेट का पोर्शन है, ठीक है, जो डेट का पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज द आउटकम ऑफ नेट इनकम थ्योरी, सिंपल उसमें। अब उन्होंने उसको प्रूव कैसे किया, जैसे अभी हमने क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड हैज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 50% डेट 50% इक्विटी। पहला सिनेरियो क्या है, 50% debt 50% equity, cost of debt is 10% and cost of equity is 16%, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला तो कैसे था आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू प्रोपोर्शन ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया और हमारा कितना आया, 13%, ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो थ्योरी है उसको कैसे प्रूव किया जा रहा है कि इफ वी हैव हायर वेटेज ऑफ डेट, सो इट विल, हाउ इट विल हेल्प कंपनी टू रिड्यूस देयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कम आएगा, सो इफ नाउ स्ट्रक्चर चेंज 60% डेट एंड 40% इक्विटी, इन्होंने क्या किया, अब ये पहले 50-50 था, अब उसको 60-40 कर दिया आपका, तो ऑब्वियसली क्या होगा, योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल कम डाउन, ठीक है। तो कितना होगा, जैसे आपका 12.40, तो पहले 13 था, हमने डेट का पोर्शन बढ़ाया तो ये आपका नीचे आ गया, ठीक है। तो thus it is clear that the proportion of debt increase, the weighted average cost of capital decrease and the value of firm enhance. On the other hand, if it decrease in the debt portion, अगर वो debt portion को कम करोगे तो weighted average cost of capital क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा जो आपका लॉजिक है। अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया दोस्तों सबको, हाँ है ना, ठीक है। सो दिस इज द वन। अब इसके बाद आपका टेक्स्ट स्ट्रक्चर वाला भी है, ठीक है। वी विल प्रैक्टिस वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, आपकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जैसा हमारे इसके साथ था, ठीक है। एक क्वेश्चन था यार, हाँ दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन वी विल गो बैक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टैक्सेशन का फायदा, ठीक है, हाउ ये जो डेट आपका है, इफ कंपनी इंक्रीज डेट तो उसके साथ जो टैक्स बेनिफिट है वो कैसे होते हैं, ठीक है। सो टैक्स बेनिफिट आपका कैसे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे इक्विटी के रीजन क्या है, डेट पे हम लोग आपका इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है ना, दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको हम लोग आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा जो इबिट होगा, ठीक है, EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो हम लोग जो टैक्स पे करेंगे ना वो कैसे होगा, जैसे आपने कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया, ठीक है, एंड उन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया वो आपका 10 करोड़ रुपीस का। तो इस केस में क्या होगा, पहले इबिट आपका 100 करोड़ है, ठीक है, माइनस आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज 10 करोड़, ठीक है। तो आप आपका 90 करोड़, दिस विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। इस पे आपका क्या होगा, 25% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये सपोज दैट, अगर इनका स्ट्रक्चर, जैसे सपोज दैट ये 100% डेट से है, ठीक है, ये कंपनी आपका 100% डेट से उन्होंने 100 करोड़ रुपए रेज किए हैं, ठीक है, और आपका या जो भी अमाउंट रेज किया है, ठीक है, तो इनका जो इनकम है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दैट इज आपका 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़, जिसमें से अब क्या होगा, जब
while they pay the taxes, so they have to minus this one, ठीक है। तो इस पे इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा because we will show this interest as a operating expense। बट यही अगर आपका 100% इक्विटी होता, ठीक है, अगर ये 100% इक्विटी होता तो चैलेंज क्या होता, इक्विटी पे हमने कोई इंटरेस्ट तो पे नहीं किया है, तो आपको 100 करोड़ रुपए के ऊपर ही क्या करना पड़ता, 25% का आपका टैक्स पे करना पड़ता। तो यहाँ पे आप ज्यादा टैक्स पे करोगे, यहाँ पे आप कम पे करोगे। सो दैट इज द बेनिफिट विच आर एसोसिएटेड विद डेट पोर्शन, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, XYZ फर्म हैविंग अ टोटल कैपिटल ऑफ 10 लाख, मतलब इन्होंने जो रेज कर रखा है वो कितना, 10 लाख रुपए, ठीक है। If has EBIT of 5 lakh, ठीक है, इनका जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज 5 लाख, ठीक है। इनकम टैक्स फॉर दी कॉर्पोरेट इज 20%, ठीक है, अज्यूम करो आपका 20%, एक्चुअली वैसे 25% है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 10%, ठीक है। What will be the traditional total income on both debt and equity? Equity portion is 100%, ठीक है। अब ये अगर 100% है तो ये जो आपकी ये है ना, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमारा क्या होगा, जैसे EBIT इज कितना, 5 लाख, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज 0, ठीक है। अब आपका EBT इज आपका अर्निंग बिफोर टैक्स इज हाउ मच, आपका 5 लाख हो गया, ठीक है। तो 5 लाख का टैक्सेस, आपका टैक्स अगर हम लोग कर दें तो कितना परसेंट है, सॉरी हाँ, टैक्स रेट इज हाउ मच, 20%, ठीक है। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 20% कितना होता है, 5 लाख का 20%, 1 लाख का 20,000, तो 1 लाख, ठीक है। 1 लाख आपका हो गया, तो इनकी इनकम कितनी होगी, 4 लाख हो गई। सो दे, अब इनकी इनकम कितनी है, 4 लाख है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, हाँ है ना। तो क्या होगा आपका आंसर 10, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कर दूं डेट में, ठीक है, इसी को मैं आपको डेट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। अज्यूम की, अब आप ये अज्यूम कीजिए कि आपका अगर डेट का पोर्शन क्या है, लेट्स से डेट पोर्शन इज, डेट का जो पोर्शन है वो आपका 100%। अभी यहाँ पे क्या था, इक्विटी पोर्शन इज 100%, अभी हम मिक्स भी करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेट पोर्शन 100% है, अगर हमारे केस में डेट पोर्शन क्या है आपका 100% है, ठीक है, तो क्या होगा, 5 लाख आपका EBIT कितना रह जाएगा, ये है आपका 5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट हमने कितना पे किया है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 10%, ठीक है। अब डेट कितने का था, 10 लाख का था, ठीक है। तो 10 लाख का 10% इज 1 लाख, ठीक है। ये क्या होगा आपका माइनस 1 लाख, ठीक है। अब हमारा EBT इज बिकम हाउ मच, EBT जैसे यहाँ 5 था, यहाँ कितना हो गया, ये 4 लाख हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब टोटल कैपिटल कितना, 10 लाख, 10 लाख का 10% इज 1 लाख, ठीक है। तो वो हमने माइनस कर लिया, जो इंटरेस्ट पे किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस शो कर देंगे 4 लाख। आप जो टैक्स पे करोगे, टैक्स आपका एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। तो ये आपका 4 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख का 20% 20,000, तो 80,000 आपका 80,000 हो गया, ठीक है, 80,000। तो इनकी अर्निंग कितनी होगी, 80,000 आप, सॉरी 80,000, ठीक है, ये आपका हो गया 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आफ्टर टैक्स, इनकी जो अर्निंग होगी, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा इनका, दैट इज 4.20 लाख आपका, ठीक है। तो दिस, सी द डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे कितना आया था, 4 लाख आया था, वहां पे आपका जो अर्निंग बिफोर दिस, अगर हम लोग डेट के पोर्शन को, अब इसी तरीके से ये मिक्स में भी हो सकता है, 50% डेट 50% इक्विटी। अगर 50% डेट 50% इक्विटी होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान क्या, जैसे 10 लाख का हमारा क्या है, आर टोटल कैपिटल इज 10 लाख, ठीक है। तो अगर आपका ये मैं इसको कर दूं 50-50, ठीक है, 50-50, ठीक है। सो 50% आपका डेट से और 50% आपका इक्विटी से। सो हाउ इट विल मेक चेंज, तो इंटरेस्ट आपका जो होगा ना 5 लाख का, अब ये 50% हो गया, 5 लाख हो गया, 5 लाख का 10%, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 50,000 माइनस होगा, ठीक है, 50,000 माइनस होगा इंटरेस्ट आपका इस केस में, ठीक है। EBIT आपका कितना था, 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 10, EBT कितना हो जाएगा आपका 4.5 लाख, और आपका टैक्स, अब टैक्स एट द रेट ऑफ, टैक्स कितना लगेगा आपका 4.5 लाख का 20%, दैट इज आपका कितना होता है 90,000, तो फिर भी आपका ये कितना आएगा आपका 90,000, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 4.10 लाख, 4.10 लाख। सो दिस इज द 3 सिनेरियोस, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, मैंने यहाँ पे पूरा आपके लिए बनाया चार्ट, ठीक है। बट इससे पहले अब मैं आपको ले जाऊंगा रिवर्स गेयर में, ठीक है। तो ये अगर आपने समझ लिया ना,
100% फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर उसने पूछा आपको तो 2 मार्क्स। ये सीआईबी में 2 मार्क्स का पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जेआईबी तो आप मतलब 100% मान के चलो। अब ये थोड़ा सा पढ़ो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन so you can build your understanding. So when determining firm capital structure, taxation must be taken into consideration. Why we should consider the taxation? Because with those particular example we made our understanding as we have discussed earlier, जो अभी हमने earlier कर लिया, चलो मान लो earning before interest and tax EBIT of a firm will not be affected by the capital structure of the firm. If firm has EBIT of 100 crores, आपका with the debt 100% equity and it will have same EBIT of 1 lakh, ठीक है, and with the capital structure of 0% डेट एंड 100% आपका इक्विटी, ठीक है। जैसे आपका अगर 100% इक्विटी है तो देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वन, जैसे हमने सॉल्व किया था। व्हाट विल बी द चेंज ऑफ प्रॉफिट दिस, ठीक है। चलो आगे एग्जांपल के साथ समझते हैं, कह रहे हैं सो एबीसी कंपनी हैविंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 2 लाख, ठीक है। इनका कैपिटल कितना है, दे हैव रेज्ड डेट 2 लाख रुपीस। EBIT earning before interest and tax is 1 lakh for the year. Income tax for corporate tax is 25%. Rate of interest on debt is 12%. So 3 सिनेरियोज आपको दिए हैं जो मैंने आपको अभी सिखाए। पहला सिनेरियो 1, ठीक है, आपका डेट इज 100%, इक्विटी इज 0। अब एक एक करके समझते हैं। डेट इज 100%, ठीक है। सिनेरियो आपका जैसे देयर कैपिटल इज हाउ मच, 1 लाख, EBIT इज 2 लाख, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, 100% डेट है, दैट मीन्स दे विल गेट इंटरेस्ट बेनिफिट, ठीक है। सो आपका डेट इज 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12% इज हाउ मच, 24,000, दिस इज इंटरेस्ट आपका, ठीक है। तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी इज आपका 10 माइनस 10, ठीक है। कहां पे पहुंचे हम लोग, आपका 76,000, ठीक है। देन टैक्स रेट आपका 76,000 का 25% इज 19,000, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज हाउ मच, 57,000 इन केस ऑफ सिनेरियो 1, ठीक है, वेयर वी हैव आपका डेट पोर्शन इज 100% एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दे विल हैव द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। यहीं पे उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा बिकॉज डेट पोर्शन इज 100%। अनदर सिनेरियो वेयर डेट, तो नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सी फर्स्ट, ठीक है। सो सिनेरियो सी, debt portion is 0, equity is 100%. So आपका we have EBIT is आपका earning before taxes, interest and taxes 1 lakh, आपका 2 lakh, this equity capital, entire amount is equity capital 2 lakh, no tax benefit 1 lakh, 25% 75,000, ठीक है। So profit after tax is how much, 75,000. If we combine this particular one, now come to B, scenario B, 50-50. So see, आपका 1 लाख, इक्विटी पोर्शन इज 1 लाख, डेट पोर्शन इज 1 लाख, ठीक है। ऑन इक्विटी पोर्शन नाउ यू विल गेट टैक्स, ऑन इक्विटी पोर्शन यू विल नॉट गेट टैक्स बेनिफिट, सो दैट मींस नाउ दिस, ये जो कैपिटल है इसमें सिर्फ 1 लाख पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सो 1 लाख का 12% इज 12,000, यहाँ पे आपको 24,000 बिकॉज 100% was debt. In this case, it was 0 because 100% was equity. But in this case, we have 50% of debt. That means 1 lakh का 50% 12,000. So आपका minus this, आपका profit, sorry, before tax आपका, then if you minus the tax, so it will come to 66,000. Understood, guys? समझ में आया? तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा हो सकता है एक दो बार रिवाइज करना पड़े, आप ध्यान से पढ़ेंगे 100% समझ में आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आप मुझे ABFM, जब आप CIB में भी जाओगे ना, वहां पे भी आप मुझे आके बोलोगे हाँ सर बहुत मजा आया और समझ में आया, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक इन्होंने थोड़ा सा, मेरे को ये क्वेश्चन सही लग रहा है, रीजन बिंग इन्होंने, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये वेटेड एवरेज हमने क्यों दिया, वैसे आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, वेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, क्यों, क्योंकि जो डेट हमने रेज किया वो मल्टीपल सोर्सेज से विद डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विटी विद डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ, आपका विद डिफरेंट डिफरेंट साइड एंड ऑल इंटरेस्ट, आपका जो कॉस्ट है, ठीक है। तो जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर आपका है कितना, इक्विटी आपका कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल इज 0.40, ठीक है। प्रीफर्ड कैपिटल आपका 0.10 एंड डेट कैपिटल इज दिस, ठीक है। तो इनका जो 100%, लेट्स से दे हैव रेज 1000 करोड़ और 100 करोड़, 100 करोड़ में से 40 करोड़ आपका इक्विटी के थ्रू,
10 करोड़ आपका प्रीफरेंस शेयर्स के थ्रू एंड 50 करोड़ आपका डेट के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड्स के थ्रू। तो आपका अब देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ इनका कॉस्ट क्या है, इक्विटी का कॉस्ट है 20%, प्रीफरेंस का है 15 और डेट का है आपका 10%। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया, पोर्शन ऑफ आपका इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस पोर्शन ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट। अब यहां पे आपको एक और ऐड कर देना है, पोर्शन ऑफ, इनको अलग अलग, पोर्शन ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पोर्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ डेट इनटू पोर्शन आपका कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप सेम उसमें सॉल्व कर पाएंगे। अंडरस्टूड गाइस? बढ़िया से समझ में आया सबको? ये हमने डिस्कस किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्लीज डू गिव योर कंफर्मेशन आल्सो, ठीक है। इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरनल फैक्टर, ठीक है, इंटरनल फैक्टर आपका विच आर इन द कंट्रोल ऑफ कंपनी। डिविडेंड पॉलिसी करेगा, रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस नो, इट इज एक्सटर्नल, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर? ए एंड डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमने अभी इसको डिस्कस किया था चार्ट के थ्रू। हाउ डज टैक्सेशन इन्फ्लुएंस अ कंपनीज चॉइस ऑफ डेट फाइनेंसिंग? तो टैक्सेशन क्या करता है इसको, आपका बोलता है डेट से ज्यादा पैसा रेज करो, बिकॉज जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस शो करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डेट टैक्स डिडक्टेबल, रिड्यूसिंग द ओवरऑल टैक्स बर्डन। तो पहला ही सही है, ठीक है, अभी हमने सॉल्व भी किया था इनको और हमने समझा भी एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, बस नाउ जर्नी इज वेरी इजी, ठीक है। So the traditional theory of capital structure state that, ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बताया था मैंने आपको, ट्रेडिशनल थ्योरी कि increase the portion of debt till some extent, ठीक है। ये this is like this traditional theory agree with the net income theory but they have some limitation. They are generally saying कि after certain time duration if you increase the debt it will having reverse impact, ठीक है। तो अगर आप डेट का पोर्शन एक्सेसिव कर दोगे ना, तो आपके ऊपर मतलब जो फाइनेंशियल लिवरेजेस है वो खराब हो जाएंगे और आपके ऊपर रिवर्स इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इंक्रीजिंग डेट ऑलवेज इंक्रीज फर्म वैल्यू, ऑलवेज लिखा है तो विल नॉट गो फॉर दिस। टू मच डेट इंक्रीज द टू मच डेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ हाँ, हाँ दिस कैन बी, मतलब हमारा मोटिव क्या था, डेट को बढ़ाने का था, बट इन्होंने बोला कि आप एक एक्सेस अगर आप डेट बढ़ा लोगे ना तो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इंपैक्ट जाएगा। तो ये अभी तक इक्विटी शुड नेवर बी यूज फॉर फाइनेंसिंग, नहीं, ये बोलते हैं कि टिल सम एक्सटेंट कि देयर शुड बी अ बैलेंस इक्विटी एंड डेट का पोर्शन ज्यादा होने चाहिए टिल सम एक्सटेंट, ठीक है। डेट हैज नो इंपैक्ट, नो इट हैज। तो बी आपका, ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, which of the following situation represent the highest financial risk? इनमें से सबसे ज्यादा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क क्या है? A company with high operating leverage and low financial leverage, ठीक है। A company with low operating leverage and high financial leverage, ठीक है। A company with higher operating leverage and high financial leverage, a company with zero debt, नहीं ये तो नहीं होगा, क्या कह रहा है? Which of the following situation represent the highest financial लो ऑपरेट, नहीं तो फिर आपका सी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। सी आपका देखो, सी करेक्ट आंसर क्यों है? हाई ऑपरेटिंग लिवरेज एंड हाई फाइनेंशियल डेट, ठीक है, मतलब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, सेम लॉजिक के साथ, ठीक है। सो ऑपरेटिंग लिवरेज रेफर टू इंपैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन प्रॉफिट, फाइनेंशियल लिवरेज आपका यूज फॉर द डेट इन कैपिटल, ठीक है। अ फर्म विद बोथ हाई ऑपरेटिंग एंड हाई फाइनेंशियल लिवरेज फेस हाई रिस्क बिकॉज रिटर्न भी हाई होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। Fixed cost and debt repayments remain constant regardless of the revenue fluctuation. तो अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न पे हैं, मेंटेन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस में, अगर डाउन में आ गया और मैनेज नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट डज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी स्टैंड फॉर? तो मैंने आपको क्या बताया था, वी जनरली टेक फाइनेंशियल लिवरेजेस, वी इन्वेस्ट दैट, तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं एंड वी गेट रिटर्न, ठीक है। सो इशूइंग ओनली कॉमन इक्विटी नो, यूजिंग डेट टू फाइनेंस ऑपरेशन टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, रेजिंग फंड्स थ्रू प्रीफरेंस नो, अवॉइडिंग डेट नो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, हम लोग क्या करें, डेट आपका रेज करें एंड वी आर इंक्रीजिंग दी और मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर टू द प्रैक्टिसिंग ऑफ यूजिंग बोरोड फंड्स टू एनहेंस द रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, XYZ में 700 करोड़ रुपीस बोरो किया था 7% पे, लैंड किया, ROI कितना निकला आपका, लेट्स से 12%, ठीक है। तो हमने दूसरों का पैसे से अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाई
और उनका जो पैसा था वो अपने रिटर्न में से उनके साथ शेयर कर दिया. सो दैट इज द वन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following factor has the most direct impact on firm capital structure decision? Which of the following factor has the most direct impact on firm capital structure? Advertisement, no. Level of competition, cost of debt and equity financing. ठीक है, so C will be right answer for this one. बहुत पढ़ लिया. ठीक है, अगला. A company has a capital structure of 60% equity and 40% debt. ठीक है, तो इनका जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कितना है आपका, सॉरी, ठीक है, कितना है हमारा 40:60. ठीक है, 40:60, 0.40, 0.60. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 14. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज आपका 14% एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज हाउ मच, आपका 8%. ठीक है, ये आपका इनका आउटकम है. ठीक है, so what is weighted average cost of capital? So I'm not going to solve this question. ठीक है, आपके लिए ये क्या हो गया, होमवर्क हो गया. So please do answer this question in the comment section. बन जाएगा ना सबसे, मैंने इसका आंसर भी नहीं रखा होगा. हाँ, it was intentionally homework question. ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है. ठीक है, दूसरा, पहला ये है. ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक और सिचुएशन दे देता हूँ. ठीक है, प्लस आपका पहले तो आपको इसका आंसर बताना है. सेकंड आंसर आपको मुझे ये बताना है कि इफ कंपनी change their debt to if company change their debt to equity ratio to let's say 60:40 और reverse the ratio. ठीक है, अगर कंपनी आपका रिवर्स कर रही है, so what will be weighted average cost of capital? ठीक है, अगर वो इसको रिवर्स कर रही है तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, ये भी आपको मुझे लिख के बताना है. ठीक है, तो ये इनमें से ऑप्शन है या नहीं है, मतलब इस पे टेंशन मत लीजिएगा. डू कैलकुलेशन, जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट्स में लिख के बताइए. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. Which of the following fact will not directly affect the weighted average? A change in corporate tax policy, it will affect. Change in risk-free rate affect. Change in production cost, no, it will not affect. ठीक है, तो C will be correct answer for this particular one. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The concept which is based on the premises that firm will earn more profit that deploying funds than cost of those particular fund is known as. ये आपने पढ़ा है, समझा है सब कुछ. क्या है, हमने 700 करोड़ रुपीस का डेट लिया. ठीक है, अब ये 700 करोड़ आपको हेल्प करेगा बहुत चीजों को सॉल्व करने में. ठीक है, एंड एट द रेट ऑफ कितना, 7%. ठीक है, वी डिड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगला टॉपिक आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है. ठीक है, सो हमने इसको आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया इन प्रोजेक्ट ए वेयर आर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सपोज दैट 12%. ठीक है, जहां से हमें 12% का ROI मिला. सो दिस एक्टिविटी इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसको, आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. सो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. अंडरस्टूड. चलो, next question guys. Okay, so this is it. So this is all about your capital structure and cost of capital. I hope you get this particular thing clearly. तो कैसा लगा सेशन, जरूर से आपका कमेंट्स में लिख के बताइएगा. दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप गाइस. तो ये टेलीग्राम ग्रुप है आपका, इसका नाम है @JIB और CIB प्रेप ऑफिशियल. टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, if you are solving practice question from anywhere, just send me a screenshot. If you are finding confusion, you can directly message me for any help regarding this. ठीक है, तो थोड़ा सा सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें. ठीक है, सो वी कैन हैव मैक्सिमम रीच और कहीं ना कहीं उनको भी आपका बेनिफिट मिल जाए. ठीक है, तो गाइस ये हमारा पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट यूनिट जो कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक है, ठीक है, that is capital investment decision and term loan. ठीक है, so that is again that capital investment decision we have net. आप उसका theoretical aspect जरूर देखिएगा पहले. ठीक है, otherwise you will not get that one. ठीक है, again the topic which will help you in CAIB. ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ा वैसे उसको भी पढ़ेंगे. ठीक है, so where you will get like आपका NPV method. ठीक है, net present value method, the most important one. Then we have payback period, IRR. ठीक है, so these are the three methods as per your curriculum. तो इन तीनों को ही समझेंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे या अदर जो एस्पेक्ट हैं वो सब आपका. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. आई होप यू एंजॉय. डू शेयर योर फीडबैक एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर friends also, so they can also take the advantages. Okay, so this is it from my side guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session.
बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे. ठीक है, थैंक यू गाइस.